درست کرو قوم کی تعریف۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن کے کلام کی طرف جائیں، چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ہم نے کورس میں گایا کہ لہو کی قیمت کوئی مریم کی ممتا سے پوچھے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر لہو کی قیمت کوئی جاننا چاہتا تو خدا سے جانے، کیونکہ مریم کے غمگین ہونے سے، مقدسہ مریم کے غمگین ہونے سے اندھیرا نہیں تھا چھایا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے اس وقت غمگین ہو گئے، شگرد بھی، دیگر اور لوگ بھی، ان کے غمگین ہونے سے اندھیرا نہیں چھایا تھا، بلکہ خداوند کے غمگین ہونے سے اندھیرا چھا گیا۔ ہاللیلویہ! آپ سب کی بھرپور تالیوں میں قرآن کے خادم کو سامنے بلانا چاہوں گا۔ ہاللیلویہ! پریز کرو قوم کی، ہاللیلویہ! آج کی صبح کے اندر خاص طور پر میری طرف سے آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے فتح مند زندہ جلالی نام میں سلام قبول ہو۔ میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، پیارے بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں، خداوند آپ سب کو آج یہاں پر آنے کے لیے برکت دے۔ ہم خداوند کا انتہائی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنی قدرت کے باعث ہمیں زندہ رکھا، سلامتی میں رکھا اور ہمارے گھٹنوں میں، ہمارے بدنوں میں تازگی رکھی تاکہ ہم اس کے گھر تک آتے اور بھرپور ورشپ کرتے، اس کے نام کو جلال دیتے، اپنے ہونٹوں کی قربانی پیش کرتے۔ آمین، ہاللیلویہ، 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 پریز لارڈ۔ اور یہاں پر آتے اور خداوند کے نام کو جلال دیتے، اس بات کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ یہ عزت افضائی خداوند کی طرف سے ہمیں ملی ہے اور یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہاللیلویہ! اس لیے اس بات کو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اسے آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ ہاللیلویہ! میرے عزیزوں، آئے ہم وقت کی آواز کی طرف بڑھتے ہیں، اس کلام کی طرف جو ہمارے لیے خداوند نے کئی زمانوں پہلے لکھا اور پھر یہ سفر کرتا ہوا کئی زمانوں سے آخری زمانے تک یعنی ہم تک پہنچا۔ آمین۔ اس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں تلاش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خداوند آج ہمیں کون سی بات کر رہے ہیں۔ یہ ٹائم میسج ہے، وقت کی آواز ہے اور ہمارے زمانے کی کرنٹ نیوز ہے۔ ہاللیلویہ! اس کو جانتے سمجھتے اور برکت پاتے ہیں۔ نکالیے گا میرے ساتھ خداوند کے کلام اقدس میں سے خداوند یسوع مسیح کی یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب ہم نکالیں گے اور 66ویں آیت سے لے کر کے یعنی ورس 66 سے لے کے 68 نمبر آیت تک ہم اسے پڑھیں گے۔ پلیز کوئی بھی اسے بلند آواز میں خداوند کے لوگوں کے لیے تلاوت کرے۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے، اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے، بیک سلائڈر ہو گئے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے، اور اس کے بعد وہ میسج کے اندر نہیں رہے۔ جی، بس یسوع نے ان 12 سے کہا، بس یسوع نے ان 12 پہلے چناؤں کو بھی کہا، کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ آپ کے پاس کھلی آفر ہے، پوچھ لیتا ہوں آپ سے بھی کہ تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پترس نے اسے جواب دیا، جی، شمعون پترس نے نکل کر اسے جواب دیا، اے خداوند، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے، کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے، تو ہی ہے، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ آمین۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں؟ جی، ایک اور حوالہ ہم نکالیں گے، پرانے عہد میں چلیں گے۔ یہاں پر آپ نے اپنا ربن رکھنا ہے، وہ جو آپ کا ہے نشان وغیرہ جو بھی ہے وہ رکھنا ہے، اور ہم چلیں گے پرانے عہد نامے میں۔ آغاز کی چند کتابوں کے اندر توریت کے بعد آتی ہیں، یہ پہلا سلاطین نکالیں گے ہم، سلاطین، اس کا چیپٹر 12 نکالیے گا، 12 نمبر باب ہے، باب نمبر 12، پہلا سلاطین باب نمبر 12 اور ورس ہے 25ویں سے لے کے 30ویں تک، یعنی 25ویں آیت سے لے کے 30ویں آیت تک ہم اسے تلاوت کریں گے۔ جی پلیز پڑھیے گا۔ جی، تب یروبام نے افرایم کے کوہستان ملک میں سکم کو تعمیر کیا، تب یروبام نے افرایم کے کوہستانی ملک میں سکم کو تعمیر کیا۔ جی پڑھتے جائیے۔ اور اس میں رہنے لگا، اور یروبام وہاں پر رہنے لگا۔ جی، اور وہاں سے نکل کر اس نے فنوئیل کو تعمیر کیا، اور وہاں سے نکل کر اس نے فنوئیل کو تعمیر مطلب بنایا، شہر بنا۔ جی پلیز۔ اور یروبام نے اپنے دل میں کہا کہ اب سلطنت داؤد کے گھرانے میں پھر چلی جائے گی، کہ اب سلطنت داؤد کے گھرانے میں پھر چلی جائے گی۔ اگر یہ لوگ یروشلم میں خداوند کے گھر میں قربانی گزراننے کو جایا کریں، اگر یہ خداوند کے گھر میں یروشلم کے اندر قربانیاں گزراننے کو جائیں، کیونکہ خدا کا گھر تو وہیں پہ تھا۔ جی پلیز۔ تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودا کے بادشاہ رہوبام کی طرف مائل ہوں گے۔ تو ان کے دل جو ہیں، رہوبام جو کہ یہودا کا بادشاہ ہے، یہودا مطلب بیت لحم میں تھا اور بیت لحم یروشلم میں تھا،
हालेलुया। तो इनके दिल उधर लग जाएंगे। युरबाम ने ऐसा सोचा, हालेलुया, अगर ये वहां पर जाएंगे तो इनके दिल वहां पर यहूदा के बादशाह के साथ लग जाएंगे। जी प्लीज पढ़िए। मायल होंगे और वो मुझको कत्ल करके शाह यहूदा रहोबाम की तरफ फिर जाएंगे और मुझे मार देंगे और उसे बादशाह बना लेंगे। तो बेहतर है इनको दूर रखो। इनको कहाँ रखो? आगे पढ़ते हैं हम, चलें पढ़े, सुनते, गौर से सुनना, गौर से सुन जी। इसलिए उस बादशाह ने हाँ जी मशवरत लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। जनाबे अली, इसलिए उस बादशाह ने जरा अपने चौधरियों से, अपने मेंबरों से, अपने बॉडी मेंबर से मशवरे करिए कि मिशन ते चलानी है ना, हुण झूठ सच बोल के है। उन्हें क्या सब मसले कोई नहीं, बादशाह सलामत, एक काम करो, जो करतूत घोला गया था ना मिस्र के रास्ते में, वही करतूत घोल लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? क्या घोला गया था? सोने का बछड़ा बनाओ, एक मत बनाना। एक से काम अब चलने वाला 2 बना लेना। पढ़िएगा इसको। क्या मशवरे से क्या किया? 2 बछड़े बनाए। 2 बछड़े किसके बनाए? मिट्टी के, सोने के। लो देखिए इक्लीसियाई जमाने का मतलब क्या है? शाही बेगमात का, पैसे वाली इक्लीसियाओं का, वर्ल्ड डिनोमिनेशन जो पैसा बहुत है ना, रेल पेल है, सुनारी है, खूबसूरत है ना, सब कुछ है उसके पास, और ये शक भी नहीं है इसमें, सच है। लेकिन ये है क्या? सोने के 2 बछड़े हैं। पढ़िएगा इसको, आगे चलिए पढ़िए। 2 बछड़े बनाए जी जनाब। और लोगों से कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी ताकत से बाहर है। आए भाई जी, यरूशलेम खुदावंदा शहर तेरे बुवियां विच हुण खड़े साडे भाई जान, ये काम ना करो, बुवियां ओदियां च पैर ना रखो। इत्थे आ बड़े कुपड़ 2 बनाए ने मैं तुहाडे वास्ते हैं। ए ने हुण तुहाडा अब क्या है? उसने कहा यरूशलेम में जाना, मैसेज चर्च में जाना, ताड़ी औकात तो उत्ते में मैसेज चर्च वाले जो कहंदे ने वो तुहाडे को नहीं होने लगा। इधर तंजीमी 2 बछड़े सोने दे बनाए ने, इधर लगे रहो, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, है ना, सारा कुछ ऑर्केस्ट्रा लेवल का मिलेगा। ऑर्केस्ट्रा समझ दो, बहुत लोग नहीं समझते होंगे ऑर्केस्ट्रा की तारीफ पता है। ऑर्केस्ट्रा कहते हैं पूरा म्यूजिक रेंज, हाँ पूरा जनाब ग्रुप आया हुआ है। कित्थों क्वायर आई है? ये उत्थों आई है ना, कोई गिटार भी है, इन्हों को मुल्क के बड़े बड़े सिंगर्स भी ने। सॉरी टू से मैं थोड़ा रोक रहा हूं क्योंकि इत्थे गल पॉइंट तुसीं ज़हन च रख लियो और ये रिकॉर्डिंग हो रही, सुन भी लेना फिर ना समझ आए। समझ आई बात की? तो क्या है? उसने कहा 2 सोने के बछड़े बना, यरूशलेम में जाना। भाई ताड़े ईमानदारों वास्ता काम नहीं है। खुदा किथे वास्ता सी? यरूशलेम में। खुदावंद दा घर किथे सी? यरूशलेम में। तेरे बूहियां दे विच दरवाजे क्या हैं? फिर मैं देखता हूं कि वो शाही जो आसमान से उतरा शहर, उसके 12 दरवाजे हैं। वो 12 दरवाजों में जाना तुम्हारे बस का काम नहीं, रसूली तालीम में चलना तुम्हारे बस का काम नहीं। मेरा भी नहीं सी, मैं तड़ा पादरी, मेरे को नहीं चले, तड़कन चलेगा। चलेगा भाईजान, ताड़े चो निकल के मार्टिन लूथर आया सी ना, है ना, ताड़े चो निकल के सज्जे खब्बे दे सारे आए ने ते मैसेज दे उकाब बने ना, वो बीज ही खुदा दा सी। मैं ताड़े पाड़े थले बैठा सी और प्रॉब्लम कोई नहीं सी। पाड़ा ताड़ा सी 21 दिन दा पाड़ा, समझ लो ना, मुर्गी पाड़े ते बैठी है ना। आजकल ते ब्रायलर बच्चे उन्होंने पता ही नहीं पाड़ा किनू कहंदे हैं। मुर्गी की गर्माहट 21 दिन की जो अंडों पे आती है और फिर उससे कुछ पैदा होता है। जी पढ़िए, आगे पढ़िए, हम निकल जाएंगे लेफ्ट राइट पे। जी प्लीज। बछड़े बनाए, यरूशलेम में जाना तुम्हारे ताकत की बात, तुम्हारे बस की बात नहीं। जी। ऐ इस्राएल, अपने देवताओं को देख, अपने देवताओं को, अपने मेलों को, अपने, और मैं बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन अभी आयत पढ़ी जा रही, मैं कहना नहीं चाहता। जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाए। ऐ वे जनाब गद्दी नशीन पतरस दा बाद चो पोप जिहड़ा बनया है, ए कट के ले आया है। यसू कौन होता है? कैथोलिक होता है सब कुछ। आगे बढ़िए। और उसने एक को बैत एल में कायम किया। बैत एल का मतलब की है? खुदावंद का। ताली बजाए भाई के लिए, गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे। बैत लहम का मतलब है रोटी का घर, बैत लहम का मतलब रोटी का घर, बैत एल का मतलब है, एल किसे कहते हैं? खुदावंद को, और बैत कहते हैं घर को। बैत एल खुदावंद का घर। खुदावंद का घर किथे सी? इथे सी जिथों रोक जिथे बिठाया सी उन्हें जियां नूं? नहीं, खुदावंद का घर तो यरूशलेम च सी। उन्हें कहा उत्थे वे तां मैं भी बनावांगा इत्थे। उन्हें बैत एल इत्थे बना लिया, खुदा का घर इत्थे बना लिया। उन्हें कहा उत्थे ही जाना तुहाडे वास दा काम नहीं। आ चर्च जिहड़ा ना, ये भी ते बैत एल ही है ना। माफ करो मेरी थोड़ी जी, मैं थोड़ा बहुता गां है ना गैरेज जाके समझाने की कोशिश करना, पर माफ करो मैनू तुसीं ऐसे ना समझो कि पादरी साहब बहुत ही फॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन होना पैंदा है।
ਉਂਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, है ना, तो चुप नहीं रहना, सच बोलना है। जी प्लीज पढ़िए। और एक को बैतेल में कायम किया, और एक को बैतेल में, एक किसको, एक को, दो बछड़े बनाए सोने के, उनमें से एक को खुदा के घर वाला नाम जो दिया उसने शहर को वहां पर कायम किया जी, और दूसरे को दान में रखा। दान कौन सी दान? हम भी मसीही होते हैं, वाह वाह वाह, हमारे पास भी बाइबल है, जद्दी पुश्ती मसीही, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਨਾਨੇ ਪਾਦਰੀ ਸਨ। ਦਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? मतलब ਕੀ ਹੈ ਦਾਨ ਦਾ? और भाई जी तुसी और दान जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, वो गलत भी आपने सही पकड़ा है, लेकिन वो वाला दान नहीं। मैं कहता दान किसे कहते हैं? दान कहता है एक दान में उसने, दान में एक कायम किया उसने बुत, और एक उसने बैतेल, दोनों शहर थे नाम के, है ना। तो दान क्या है? नाम है, गॉड ब्लेस यू। और उस नाम पे क्या बना? शहर। और ये कौन था जिसके नाम पे शहर बना? दान। और ये दान कहां से था? चलें मैं बताता हूं, याकूब के 12 बेटों में से एक दान था। आगे चलिए, आगे चलिए। और दूसरे को दान में रखा, और दान में रखा, और ये गुनाह का बायस ठहरा, और ये गुनाह का बायस दान के लिए भी ठहरा और युरबाम के लिए भी ठहरा। वो दगाबाज बादशाह जरा सी जिन्हें यरूशलेम नु दगा दे रहा, वो यरूशलेम को दगा दे रहा है, बनी इस्राएलियों को दगा दे रहा है, उनको कह रहा है वहां पे तुम नहीं जाओगे, नहीं जाना तुम्हारे बस का काम। आमीन। और उसने जो नाम, दान के नाम से वो शहर बनाया था, याकूब दे 12 बेटे जो के बेटे थे ना तो शहर बनाते, उन्हें क्या ठीक है पर साहब तुसी ठीक कह रहे हो, बेशक असि मैसेज है, कभी कभी इधर भी लात रहा लेने हैं, समझे कि नहीं समझे? उसने कहा बनाओ, टेंशन नहीं लेनी। और यही दान के लिए खतरनाक काम हो गया, खतरनाक। हम आगे बढ़ेंगे और इसको खत्म करेंगे। जी प्लीज, फिर मैं बात करता हूं। और ये गुनाह का बायस ठहरा, और ये गुनाह का बायस ठहरा, दान में भी उसने एक नस्ब कर दिया और रोकदा ना कि मेरे शहर दे विच क्यों रहा कर रहे हैं तू, क्योंकि लोग उस एक की प्रस्तिश करने के लिए दान तक जाने लगे। हाँ जी, उसकी प्रस्तिश करने के लिए दान तक जाने लगे लोग जी। और उसने ऊंची जगहों के घर बनाए जी, और अवाम में से जो बनी लावी ना थे हाँ जी बनाए। हाँ जी। और उसने किसने? युरबाम ने, जो बनी लावी नहीं थे ना, बादशाह युरबाम बादशाह जो के दगाबाज फ्रॉड बादशाह था। आमीन। उसने क्या किया? बनी लावी में से खुदा ने कहा था, लावी भी याकूब के 12 बेटों में से एक था, कि लावी की नस्ल से हारून की नस्ल, लावी का कबीला और हारून की नस्ल, लावी की नस्ल तो हारून ही है ना, ठीक है, लेकिन लावी को कबीले के तौर पर लेंगे और आगे नस्ल में से हारून के बेटों में को पादरी बनाया जाएगा। समझा नहीं दी? तो उसने कहा लावी दी नस्ल चो पादरी ले ही नहीं, उन्हें कहा असी अलग कमीशन है, जरूरी नहीं कि पुत्र ही पादरी हो, ਧੀਆਂ भी ते पुत्रा तरह ही होंदियां ने, भी पादरी हो सकती हैं, समझे ना। उसने जो बनी लावी नहीं उनको पादरी बनाया, जिस काबिल ही नहीं थे उनको पादरी बनाई। उसने गुनाह किया युरबाम ने, और दान ने पूरा साथ दिया। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, इस कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हमारे लिए नसीहत लेकर आए, और आज हम जान पाए कि इसमें हम कहां पर मौजूद हैं। हम अगर मौजूद नहीं ना तो मैं 5 घंटे लेक्चर देना तो दुनिया के वैसे 10-10 घंटे भी देती होगी, वो दे रही है पता नहीं कितने सालों तो, पर साढ़े बारे तो दे ही नहीं रही है ना। हमें अपने बारे में लेक्चर सुनना है। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। इस कलाम के बाद आपकी जिंदगी से मुसीबतें दूर हों और खुशहाली बहाली है। अजीजों बैठिए, तशरीफ रखिए। खुदा आपके साथ। तारीफ हो, हालेलुया, तारीफ हो, हालेलुया। इससे पेशतर के हम आगे बढ़े, आज का हमारा जो मौजू है उसको ले लेते हैं। आमीन। जिंदगी की बात है, द वर्ड्स ऑफ द इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी की बातें। वो के उर्दू की बाइबल में हमेशा की जिंदगी की बातें शायद ना लिखा हो, जिंदगी की बातें लिखा हो, और अगर हमेशा की जिंदगी की लिखा भी है तो दी बेस्ट है। हमेशा, गॉड ब्लेस यू, खुदा साथ हो। क्या लिखा हुआ है? हमेशा की जिंदगी की बातें तो किसके पास है? यस्सु खुदा का क्या था? यस्सु में कौन बसता था? बोलते जाइए, बोलते जाइए। और जिसमें खुदा रहता है वो क्या होता है? खुदा का घर, बैत-एल, खुदा का घर। सबसे पहले कौन था? खुदावन यस्सु मसीह। हालेलुया, जलाल खुदावन के नाम को मिले। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, रसूल बयान करता है नए अहदनामे के अंदर कि अब से हम खुदा को मसीह की सूरत में ही जानेंगे। पुराने नविश्तों में खुदावन ने कहलवा दिया, ऐ मूसा क्यों जिद करता है मुझे देखने?
बशर मुझे देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? कब से ये देखना बंद हुआ था? कब हुआ था बंद? हाय हाय, गॉड ब्लेस यू, खुदा मदद कर दे। मुझे पता बहुत खुशी होती है जब बच्चे ऐसे क्लिक करते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरी मेहनत ना जाया नहीं जा रही, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई प्रिजर्व और ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना? समझ रहे ना? समझ रहे मेरी बात? वो प्रिजर्व कर लिया, संभाल लिया, कुछ रखा होगा पास, जब आएगा इसको इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनको बहुत सी चीजों का पता है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको और भी ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल की चीजों का पता चले। हालेलुया। क्योंकि शीरखारों के मुंह से बहे कलाम दे। हालेलुया। मुबारक हो तुम, तुम्हारी आंखें जो वो देखती हैं जो वो ना देख सके, जिनकी बहुत आरज़ू थी नबियों बादशाहों की, लेकिन देखा। लेकिन आप आखिरी जमाने की नजर है, रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी। कोई पीढ़ी है, कोई पीढ़ी है, यही पीढ़ी है, यही नस्ल है। हालेलुया। खुदा ने आपको मुबारक कहे, आप अपनी मुबारक हाली पर गौर करें। तो क्या हुआ यहां पर? यहां पर खुदावंद ने बताने की कोशिश की है जिंदगी की बातों के मुतालिक। तो हम देख रहे थे कि यस्सु मसीह में खुदा बसा, तो यस्सु क्या हुआ? सबसे पहला बैतएल हुआ। आमीन आमीन। हालेलुया। सबसे पहला खुदा का घर कौन हुआ? और खुदा ने तो पहले से ही कह रखा था, तू मेरे लिए कैसा घर बनाएगा? क्योंकि खुदा को पता था कि मैं अपने लिए तो घर बना चुका हूं। सबसे पहले थियोफनी हालत में आसमान पर, और उसके बाद मुकद्दस मरियम के जरिए बेटा पैदा करके, और फिर दुनिया में 30 साल का करीब उसमें उस घर में खुदा आ गया। उसने कहा मैं तो बना चुका हूं, जहां पर मैं रूह हूं मेरा पंजा वहां पर टिकेगा। नूह के जमाने में मेरा पंजा नहीं टिका, सब मुर्दे थे, लेकिन ये है एक खाली जिसमें मैं रह सकता हूं। हालेलुया। और यीशु ने कहा बाप मुझ में रहकर अपने सारे काम आटे भी रह के बाप कर दे बेटा। अगर करता अपने सारे ही काम तो फिर कुछ नजर भी तैयार देना। और ये मैं बच्चों से नहीं कह रहा, बड़े बुद्ध में लोग बच्चे आते हैं और बिन्ने नौजवान ने फिर बड़े आने की रिजल्ट वो है क्या दिखा? दिखाना है रिजल्ट। आमीन। तो क्या है भाई? बातों को समझेंगे तो बरकत मिलेगी, नहीं समझेंगे तो बगैर समझ के तो, है ना? पढ़ना बरकत का बायस है, सुनना बरकत, समझना भी बरकत का बायस है। समझना, इस किताब का पढ़ने वाला सुनने वाला है ना, और इसको समझने वाला भी बरकत का बायस है। हालेलुया। तो ये देखना जो इंसान का, बशर का, खुदा को नहीं देख सकने वाला केस है, ये कहां से शुरू हुआ? तो बेटे ने बताया अदम से। आदम से तो वो देखते थे, खाते भी थे, एक दूसरे से बातचीत भी करते थे कि नहीं? वो जिंदगी का दरख्त कौन था? खुदा ही था अपनी हालत में। हालेलुया। वो बातें भी करता, सब कुछ करता था और देखा भी। हालेलुया। लेकिन ये देखना बंद कहां से हुआ भाई? बंद हुआ आदम से। और फिर क्या कर पावे तू नबी है जो मर्जी भी तेनू नजर नहीं आने लगा। मैनू तू उस हालत वेख नहीं सकता। उन्हें कहा वेखना है, उन्हें क्या कर ला फिर पुष्ट वेला थोड़ी जी। जैसे ही उसने थोड़ी सी झलक कराई और वो ऊंधे मुंह मुर्दा सा होके क्या पड़ गया? गिर पड़ा। ऐसा ही कुछ हाल यूहन्ना के साथ मुकाशवा की किताब में भी नजर आता है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि खुदा ने शुरू में कहा कि देख सकता है, मूसा तू नहीं देख सकता, यूहन्ना देख सकता। नहीं नहीं नहीं, यूहन्ना कहता है मैंने जब पीछे देखा तो बर्दाश्त न कर सका। उसकी आंखें आग के शोला की तरह यार, पांव खालिस पीतल की मानद, समझ रहे हो? और चेहरा ऐसा नूरानी, और मैं सह न सका और मैं गिर पड़ा, मुर्दा सा गिर पड़ा। लेकिन फिर मुझे उठाया गया और उठाया और कहा मैं इधर ऊपर आ जा। यूहन्ना क्या है? कौन है यूहन्ना? किसकी तमसील है? आपकी तमसील, आप मेरी, ब्राइट चर्च की। हर किसी को खुदा नहीं ऊपर बुलाता। समझ आई गल दी? दूजिया का वाला दवा तो छेती समझ दो। तुम रंग जो उन्होंने बहुता चढ़िया हुआ है, रंग ही उन्होंने चढ़िया ना। शादी ब्याह मातम करे है ना, खुशी गमी सारे वो बड़े हुए ने, बड़े नहीं हुए तो वाड़े हुए ने। हम तो इसलिए भाई उधार लेते हैं क्योंकि घर में एक ढेला नहीं। ढेला क्यों नहीं? तुझे तो साधक हो, साधक तो भुखा मारदा ही नहीं। ताड़े को अपनी रवायत कोई नहीं बाइबल में लिखी हुई नहीं ना। फिर दुनिया है, फिर हाँ ये बात करो कि दुनिया की तरह रहना है। ये मत कहो कि हमारे पास है कुछ नहीं, है बहुत कुछ है, बल्कि मैं कहता हूं 4 गुना 10 गुना ज्यादा है। मनने वाले बनो, मनना नहीं मुश्किल है। यीशु ने क्या कहा? खुदा के अहकामात मुश्किल नहीं है, मानने वाले के लिए मुश्किल। जितना जिस तरह के लोग समझते हैं कि सख्त अहकामात है, नहीं है। जो मानता है खुदा उसे ताकत देता है, वो मानता है। हालेलुया। तो क्या हुआ? ये देखना वहां से रुका। आमीन। लेकिन मसीह ने बीच में आकर बताया, जिसने मुझे देखा उसने, that's it। उसने कहा तू क्यों पूछता है?
तू अभी इटर्निटी यानी कि जहां पर अब्दियत है वहां पर नहीं जा सका। आमीन। इसलिए यहां पर मुझे देख ले, दैट्स इट, मुझे देख ले तेरे लिए एनफ है, मुझे देख ले, आमीन कर ले, तेरे लिए एनफ है। अब खुदा को हम मसीह में से ही जानेंगे, एनफ है तेरे लिए, ये कर ले, है ना। आमीन आमीन। अब यहां पर यीशु मसीह एक मुकाशफा दे रहे थे, क्या दे रहे थे? जिंदगी की रोटी मैं, जो मुझ में से खाता है वो कभी मरेगा नहीं, है ना। जिंदगी का पानी मैं हूं, मेरा खून पियो, मेरा गोश्त खाओ। इतनी बड़ी बड़ी बातें और अजीब सी बातें यीशु करना शुरू हो गए। ये नबूवती बातें थी इसलिए अजीब थी। शागिर्दों में से बतेरे, कौन थे बतेरे? कितने थे बतेरे? कितने थे? 70। बड़ा हिस्सा नस भज गया। उन्होंने कहा हानू नहीं वारिस, हानू नहीं वारिस, असि पादरी बनना है। बस इतने मैसेज दे विच समझो, पादरी बन गए, अब हम तंजीमी हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं उसी गंद में। तो भाईजान 100 बिस्मिल्लाह निकलो। वो थे, वो निकले तो हम में से, पर हम में से हालेलुया। हम वैसे नहीं हैं, आप मत ऐसे होना। आप क्या उसे कहते हैं ना कि तसलसल के साथ मसीह के साथ चिपके रहना। आमीन। जब वो चले गए तो यीशु ने पहले चुनाव को पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़ जाना चाहते हो? आमीन। पतरस ने क्या कहा? ऐ खुदावंद तुझे छोड़कर कहां जाए, हमेशा की जिंदगी की बातें तो, द वर्ड्स ऑफ एटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी की बातें किसके पास हैं? यीशु के पास। और यीशु क्या है? खुदा का बैतुल, खुदा का घर है। यीशु खुदा का। तू मेरे लिए कैसा घर बनाएगा? क्या तू नहीं जानता कि हक ताला जो है, बारी ताला जो है, वो हाथ के बनाए हुए घरों में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। मैसेज तो थोड़ा टेक्निकल पॉइंट का मैसेज है। टेक्निकल कौन सा? स्पिरिचुअल टेक्निक। आमीन आमीन। क्या है? यीशु मसीह हाथ का बनाया हुआ था, आदम हम किसकी नस्ल थे? हाथ के बनाए हुए। हमें जरूरी हुआ कि यूहन्ना पहले बाब की 6, 7, 8वीं आयत को पढ़ने, अगर 20वीं तक पढ़े तो वहां पर लिखा है, वो ना इंसान की ख्वाहिश से पैदा हुए, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा के रूह से पैदा हुए। हालेलुया। और वो किनकी बात? तो भाई किन्हां दी गल कर रहे हो? वाह जी वाह, ताड़ी गल करन दिया। आपकी अच्छा सी होने है। अच्छा हाँ, जिंदगी की बात है, ये खाली जिंदगी की बात है। 50 साल तो साडे बाबे भी पढ़ते आ रहे सन, बुजुर्ग साडे पादरी पढ़ के सुनाएंगे, पढ़ के सुनाए, पढ़ कर दिता उन्होंने पकड़ के। हैं संडे स्कूल चला के जनाब, रेवल्यूशन कौन दसेगा? कौन बताएगा? वैसे बताऊं भाई दबे, उनके बस की बात नहीं थी, अगर होता तो बता देते। क्योंकि रेवलेशन जब अंदर होता है तो आग अंदर होती है, वो निकलती है, वो रहती नहीं अंदर। यिर्मयाह ने क्या कहा है? खुदावंद तेरा कलाम मेरी हड्डियों में आग की मानद है। कौन सी आग? जलती हुई आग। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझे कि नहीं समझे? खुदा का कलाम भस्म करने वाली आग है। कितने भस्म होए हाले हाडे ते स्ट्रीलाइज हाले भी वो गंद मंद पुराने पैरासाइट चिपके हुए नाल साडे। पैरासाइट समझ दो किनु कहंदे? नहीं, पानी दे विच शीशा नुमा कीड़े जे हुंदे ने, चिमके हुंदे ने नाल ओदे पूरा टैंकी दे। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਰਨ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਸਮਝਿਆ ਨਾ? तो पैरासाइट निकाले ही नहीं, वक्त उसमें ले लेने। पैरासाइट कटो, पैरासाइट कहते जरासीम, जम्स, लाडू बन गए सानू जमसा की। अगर असं जरासीमां की तारीफ ते बह के तो फिर मैसेज रह जाएगा तो जरासीम बड़े ने। आमीन। सानू लगता असीं बिल्कुल ठीक है तो मुंह च बो आ रही हुंदी है, कोई दस यार स्मेल बड़ी आ रही, दुर्गंध आ रही है तेरे मुंह से, दुर्गंध। समझ मेरी बात है? वाकई चंगा बंदा इंज कि नहीं पता चलना है? मैदा ठीक कर, मैदा मैदा कह देता है, मैदा ठीक कर, वो किंज होएगा? नीम गर्म पानी पी, है ना? कोई आ खा, वो खा, इंज दी चीज खा जिहड़ी भैड़ियां चीजां छड्ड दे, पेट दे कीड़े मरन, आ गई सकते। समझ मेरी बात? ये स्पिरिचुअली अंग है, ये कोई बदनी मामलात नहीं मैं बता रहा आपको, जिस्मानी मामलात नहीं बता रहा, रूहानी बता रहा हूं। तो क्या है भाई? जैसे यीशु मसीह हाथ का बनाया हुआ घर नहीं था, जितने नए पैदाइश याफ्ता हैं, हालांकि कई कहते हैं मैं थोड़ा ना टाइम चाहिए, मैं क्या वेरी गुड, ले लो टाइम, जितना चाहिए ले लो, पर होना पेगा, नवा जन्म लेना तो पेगा। आमीन आमीन।
वो टाइम क्यों ला रहे हैं वैसे? मुझे लगता है अभी 4 दिन जिंदगी के, है ना, अभी मैं कौन सा बूढ़ा हो गया? तो भाई जवानी के दिनों में जो खुदा को मुबारक वो जवान है जो मसीह को शाद करते हैं। शादमान से निकला है शाद। आमीन। खुशनुदी जाहिर करते हैं। हालेलुया। साथ रहिएगा, जिंदगी की बात है। द वर्ड्स ऑफ एटर्नल लाइफ, जिंदगी की बात है। आमीन। अब यहां पर हमने 2 कॉन्टेक्स्ट पढ़े और 2 कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा, एक नए ऐसे पढ़ा कि यहां पर कुछ ऐसे हैं जो कहीं और जाना चाहते हैं और वो बाय द वे चले भी गए। उनको लगा ऐसा कि यीशु मसीह जो है, जो कि बैतेल है, खुदा का घर है, जो कि बैतलहम है, रोटी का घर है, हालेलुया, जो कि छोटा बैतलहम है, जो कि छोटा सा शहर है, छोटे शहर बैतलहम। तू क्यों खड़ा खामोश? तू क्यों खड़ा खामोश? लेकिन उसमें एक जिंदगी पैदा होने वाली थी जो रॉयल सीड था बैतलहम के अंदर। हालेलुया। हमारा दाऊद, हालेलुया। और वो कौन था हमारा दाऊद? खुदावंद यीशु मसीह, हमारा दाऊद। हालेलुया। और दाऊद का सितारा 5 कोनों वाला नहीं, कितने कोनों वाला? 6 वाला। किसने बताया? यहां से किसने बताया? किसने बताया? किसी को बोले है? गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे आपको। 6 कोनों वाला दाऊद का सितारा, हमारा दाऊद यीशु मसीह। 6 कोने आदमी का आदत थी। 6 किसका आदत? कैसे बने 6 कोने? 3-3 करके भाई। अच्छा, एक तो हो गए 3, ये जो ऊपर से आ रहे हैं नीचे की तरफ 3 कोने, 3 कोने नीचे से भी ऊपर जा रहे हैं और ये रास्ते में मिलके जब ऐसे होते हैं तो 6 कोने बन जाते हैं। और ये 6 कोने जब जाते हैं तो फिर ये 6 कोने हमारे दाऊद का सितारा बन जाता है। और हमारे दाऊद का सितारा ही बन इजराइल का असली सितारा है। यीशु मसीह ही हमारा इब्ने दाऊद है, यानी दाऊद बाप के नाम से हमारा दाऊद। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु का नाम बुलाएंगे। हमारा खुदा यीशु मसीह ने दाऊद नहीं है। और अगर यीशु मसीह ने दाऊद है तो बेटा बाप के नाम से आता है। यूहन्ना जब पैदा हुआ तो लोगों ने कहा इसका नाम इसके बाप के नाम पे रखा जाए। यीशु ने कहा मैं बाप के नाम से दुनिया में। एक बाप तो वो है ना जो हम सबका है और यीशु का भी है, खुदारू, है ना। एक बाप वो था जो जमीन पे दिया गया, उसका भी एक मतलब है और वो मतलब हासिल किए बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि हम रूह में ही नहीं है, हम बदन में भी। हालेलुया। अच्छा, तो क्या वो वहां पे यीशु मसीह ने दाऊद है और दाऊद के घर में दाऊद पैदा हुआ। दाऊद भी बादशाह था और उसका बेटा भी दुनिया का बादशाह। हालेलुया। अब वहां पर जो मौजूद रोमन बादशाह था उसको लाले पड़ गए, उसको टेंशन लगी। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन ये टेंशन लगी क्यों? जैसे सलातीन के अंदर, पहले सलातीन के 12वें बाब के अंदर 25वें से 30वें, यही रटे से पुराने अहदनामे की किताबों के नाम नए किए, रट लो भाई। कितने करके कितने रटे होंगे क्यों किन ना पता चलता, पूछना नहीं चाहिए, पर नहीं रटने ना। बच्चों ने रटे हुए हैं, बुजुर्गों ने रटे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पुराने अहदनामे में पहला सलातीन 12वां बाब 25 से 30 के अंदर हमें 2 बादशाह नजर आ रहे हैं। आमीन। एक नबात का बेटा है, नबात भी एक शख्स था, उसका बेटा है कौन? युरबाम। और युरबाम जो है, इसके अलावा एक बादशाह है जो यहूदा के कबीले का बादशाह है, और वो कौन है? रहबाम। आमीन। और रहबाम किसका बेटा था? सुलेमान का। सुलेमान किसका बेटा था? समझ आ रही गल थी? कौन किससे था? जो जिससे था ना वो उसी का बेटा था। आप किससे हैं? खुदा के रूह से। तो आप किसके बेटे हुए? खुदा के बेटे। यीशु किससे था? खुदा के रूह से था। तो यीशु किसका बेटा हुआ? खुदा का बेटा हुआ। बदनी तौर पर, बदनी तौर पर। हम किस तौर पर हैं? बदनी तौर पर। पहले हम किसके बेटे थे? मैं किधर से, है ना भाई सलीम? कहना पड़ेगा, जरूरी है, समझाना जरूरी होता है ना। वो पीछे बैठे ने खानदानी नवाब, खानदानी नवाब का बेटा, है ना। समझ रहे?
اب بھی ہم ان کے بیٹے ہیں, بالکل ہیں, لیکن اب ان سے بھی بڑا ایک ہمارا باپ ہے جو ہمارے باپ کا بھی جناب, ہمارے باپ کا بھی باپ جو ہے وہ ہمارا باپ ہے. ہاللیلویا. تعریف خدا ان کے نام کی, جلال خدا ان کے نام کو ملے, خدا ان کے نام کو عزت ملتی ہے. ہاللیلویا. اور اب ہم جو ہمارے باپ کا باپ ہے وہ ہمیں کہتا ہے اپنے باپ کی عزت کر, اپنے باپ کی جو عزت کر, اور تیری ماں جو تیرے باپ کا بدن ہے وہ دو نہیں ایک ہی نے. اپنے باپ اور اپنی ماں کی خدا ان برکت دے. باتیں تو سمجھ آ رہی ہوں گی آپ سب, آ رہی ہیں؟ زوردار تالی خدا ان کے جلال کی. زندگی کی باتیں آج کا ہمارا موضوع. آمین. میں کیوں یاد کراتا ہوں, گل کے تو ہونی چاہیے. اب زندگی کی باتیں پڑی ہوئی ہیں رہوبام کے شہر کے اندر, ملک کے اندر, اور وہ کون سا تھا؟ یروشلم, جہاں پر بیت لحم تھا. بیت لحم یعنی روٹی کا گھر, اور وہاں پر چھوٹا روٹی کا گھر یسوع مسیح زندگی کی روٹی میں ہوں وہ پیدا ہونے والا تھا. سمجھا رہی گل دی؟ وہاں پر کہتا ہے وہاں پر جانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم کیا کرو. اچھا یہ کیوں الگ الگ ہو گئے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ کیوں ہو گئے. جو بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں پرانے, انہوں نے پتا ہے کیوں الگ الگ بادشاہ آنڈے سن. بنی یہودا سے الگ تھے, بنی اسرائیل سے الگ, بادشاہ بھی الگ اور نبی بھی. جناب علی دو پاڑے تھے پہلے دن تو ہی ہو گئے سن. ہوئے کیوں؟ کیونکہ سلیمان نے ٹیکس لگائے تھے. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. اب یہ تھوڑا سا اسباق تھا اور سیاق تھا, یعنی کہ تھوڑا سا پیچھے. اب معاملہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر, بنی اسرائیل دو اور بنی یہودا یعنی کہ یہ دو گروپ بن گئے, ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا. آمین. زیادہ قبیلے ایک طرف ہو گئے اور کم قبیلے ایک طرف ہو گئے. پھر بادشاہ بھی خدا تو نہیں چھوڑتا, خدا نے دونوں طرف اپنے میسج کو بھیجا. آمین. لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو کہاں پر بھیجنا تھا؟ یہودا کے قبیلے میں سے. اسی لیے بنی اسرائیل الگ ہے اور بنی یہودا الگ ہے. ہاللیلویا. بنی یہودا کے نبی الگ ہیں اور بنی اسرائیل کے نبی الگ ہیں, اور بادشاہ بھی اسی طور پر الگ ہے. ہاللیلویا. اب یہ یربام جو تھا یہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا. آمین. اور وہ جو بادشاہ تھا رہوبام وہ سلیمان کا بیٹا تھا, اور وہ ٹیکسوں کو اسی طرح قائم کیا ہوا تھا. انہوں نے کوشش کی کہ اس سے بات کریں کہ ٹیکس تھوڑے کم کر, اس نے کہا نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. آمین. ہاللیلویا. اب اس بادشاہ نے پولیٹکس بھائی جان کی کر دے ذرا نا بیبیاں تے تعلیم ذرا کٹ دیا. انہوں نے کہا نہیں کر سکتا. یار سوری کلام ایسا کہتا ہے, میں نے تو کہنا ہے. انہوں نے کہا بھائی جی کی تسی کوارا پادری لایا, فلانا ٹمکاڑا لایا, پادری پادری ہوندا ہے, دیٹس اٹ. میں کہنا نہیں سر میں تے نہیں کمپرومائز کر سکتا, میں تے آئی کہنا. آمین. او بھائی جی تسی کیا کہندے ہو جناب کہ شام نوں بہو, شام نوں بہو, شام نوں ٹھنڈک ہوندی ہے, لوکاں دے پیر ٹھر جاندے, لوکاں دیاں بھੈਣਾں مصیبت چ پایا تسی لوکاں. یہ بھی تے پادری ہوئی ہے نا جڑا کہہ رہا ہے. تو دوجا کی کہندا نہیں سر سوری نہیں کر سکتا, خدا کا کلام کہتا نہیں کر, ٹائم سے کر. آمین. آمین. یہ تے دو بادشاہ لگ دیتے, ایک یربام تے ایک رہوبام. ایک نے الگ کلیسیا بنائی ہوئی ہے, ایک نے الگ ہے نسل ایک کے ابراہیم دی ساری. اگوں پاڑے آگے دو بادشاہ دو پادری آگے. سمجھ آنٹی گل دی کوئی باہروں نہیں نے وچوں ہی نے. ایک نو ابلیس استعمال کر رہا ہے, دوجے نو بچا رہا ہے. خدا نے گھر ایک ہی رکھا ہے, دو گھر نہیں رکھے. سوری ٹو سے خدا نے ایک گھر رکھا ہوا ہے, اور وہ کہاں پر ہے؟ یروشلم میں. اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا اگر یہ وہاں پر گئے, کیونکہ پبلک تے انوسنٹ ہوندی ہے, پبلک نو تسی دسو گے کہ اینڈ ٹائم میسج والے جڑے نے وہ کیا کرتے ہیں؟ باپ اور بیٹے کا انکار کرتے ہیں, یہ تو بدعتی ہیں. او بھائی پہلے اینڈ ٹائم میسج والے نو آن کے پوچھ لو اسی انکار کرنے ہیں. سمجھائی گل دی؟ پر بچوں کو تو جو پڑھاؤ گے وہ پڑھ جائیں گے نا. نہیں نہیں نہیں, ان سے بھاگ جانا ہے, ان کے پاس رکنا نہیں ہے, ان کو سلام لینا نا بہت بری بات ہے. سمجھو کیوں اتنا پرے کر دیتے ہیں. ان کو پتا ہے اگر یہ کہیں پر بیج اس پر آ گیا تو پہلے ہی اسی 15-20 تو کھو چکے ہیں. ادھی کلیسیا تے ساڈی کئیاں دی نکل کے ادھر جا رہی ہے. تے انہاں دا کی بنے گا؟ بلک مجھے اپنے شہر میں سے گزرنے دے. موسیٰ نے کہا, پتہ نا بنی اسرائیل آ رہا سی اوتھے چھٹ کے اگے بلک بادشاہ ملک مواب, وہ کہنا نہیں جانے دینا. وہ کہتا ہے جان دے یار, پیسے لے لیں جو ساڈے بادشاہ دے وچوں بچے تہاڈے کھان گے, ساڈے ڈنگر مال تہاڈے کو کھا جے گا, اسی پیسے داں گے. ویسے بھی سانوں کنے تے سال لگ گئے نے راہ چ اپنے کرتوتاں دی وجہ تو, تے کمایا سا بہت کچھ ہے, کمایا یہ خالی حالے تے مرنے نے اگے جا کے بڑے.
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਾਣਾ? ਦੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਜਾਣਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਫਟ ਕੌन सा होता है। बेटा सीधा जूता पहना करो। और कुछ मैंने ऐसे ही पहनना है। पर क्यों? उन लगता है जी ठीक है, बच्चे है ना। क्या ख्याल है? हैं वही पे ग्लव्स जड़ा इधर ला उधर ते उधर ला इधर कर दे। बच्चा है ना, खुदा कहता है इन्ना नहीं लेके चलो, इन्हों जो सिखाओगे वो सीखेगा। नाल कुछ बच्चे नस्ल जो भी बहुत छोटे थे वो और यशोर कालो हालेलुया ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਕਾਇਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਮੀਨ। हुआ क्या? रास्ते में मुआब आ गया, मुल्क मुआब। उसने कहा जाने दो, कहता नहीं जाने दूंगा। टेंशन की से ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ खुदा ने ਕਿਹਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਵਾ ਟਿਕੇਗਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਕਰਾਂਗਾ। नबी और नबी की नबूवत मैसेज होता है, टाइम मैसेज, वक्त का पैगाम। हालेलुया, वक्त की आवाज, द वॉइस ऑफ आवर एज, हमारे जमाने की आवाज। वो कहता है तुसी इत्थे आए थे ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ, ਅਸਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੀ नहीं। और उसने नहीं जाने दिया उनको। भला खा काफी देर खलोते रहे, बलाम ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕੱਢ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਟੂ ਬਣ ਗਏ। ਹੈਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਚਰਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ मैं झूठ हो रहा क्या? गलत बात कर रहा हूँ? गलत तो नहीं, ऐसा है भाई। अगर आपको अभी तक फील नहीं हुआ तो फिर फील कराओ अपने आप में। हैं ਉਹ ਕਾਬੀ ਬੱਚਿਓ, ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਛਾਣੋ ਮਾਂ ਦੀ। और कुछ नहीं, तो अपने वाली वेख लिया करो कौन होने हैं। उकाब होते हैं हम अभी क्या चीजों के साथ चलने फिरने वाले। खुदावंद ने निशान जो दिया उड़ता हुआ उकाब। उकाब वो होता है उड़े, डाल ते बैठा हुआ कबूतर भी इको जा ते उकाब भी इको जा। समझ रहे मेरी गल? उड़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो वो डरा, उसने नहीं जाने दिया और लानत के लिए बलाम को बुलवा लिया। और बात शॉर्ट करता हूं, क्यों डरा? क्योंकि उसे लगता था कि अब ये मेरा मुल्क गया, मेरे लोग गए, और उसने नहीं जाने दिया। इसी तरह से युरबाम ने क्या किया, जो नबात का बेटा था, उसने कहा कि इनको यरूशलेम से दूर रखो। अगर ये यरूशलेम में गए और इनका दिल उस बादशाह से लग गया तो लगते जाना है, क्योंकि बादशाह तलीम ही सख्त देंदा, दिल दा के बहुत अच्छा है। कोई छितर मार भी लगते कहता भाई जी खुदा तानू बरकत। कोई माए का हाथ चो खिंच भी लेना तो कहता खुदावन भाई अंदर। समझ रहे हैं? ये मैसेज का पास्टर है। तंजीमी हुंदा तो कहता कर लेना तेरा बंदोबस्त है। किसी भी एक मुंडे नूं कुप्पी पे आ देना तो गोया गिट। और ये हुआ है हमारे साथ, मुझे पता है। समझ मेरी बात जनाब? तो आप जिस खनवादे से ताल्लुक रखते हैं, जिस खानदान से, वो यसू का खानदान है। जिसने कहा भाईजान अगर कोई गलत मारे थे कर ले, इधर भी मारना भाई, भला हो तेरा खुदा अंदर कर। पर बात टनाटन सही करना, ब्लंट करना, छुपाना नहीं, यनीस यमरीस नहीं बनना, मूसा बनना। मूसा के पास कुछ था कहने के लिए, सिर्फ मौजूदा नहीं सी, कुछ कहने नहीं सी। मेरे लोगों को जाने दे, छोड़ इनको। आमीन। यनीस यमरीस ने क्या छोड़ दे दांगे निशान वखा। उन्हें कहा निशान का कड़ा प्रॉब्लम है, आज प्याज छोटा छोटा छोटे आज तो बन गया। उन्हें कहा साडे को भी है। उन्हें कहा ताडे को तो ये है, पर कहने नु की है ताडे को? कुछ भी नहीं, क्योंकि गुलामी के साइड पर तुम खड़े हो, लाइन की दूसरी तरफ खड़े हो तुम, और वो मिस्री लाइन है। वो मिस्री है, और मिस्री लाइन के अंदर जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम का बेटा होगा, लौंडी का बेटा होगा। और खुदा ने क्या कहा? लौंडी और उसके बेटे को। कौन है लौंडी का बेटा? उस टाइम पे तो वो था, निकाल दिया। नस्ल आदम में भी लौंडी का एक बेटा है। कौन है? सिखाया था मैंने इसमें। ओके नो प्रॉब्लम, छोड़ दो उसको, वो तो सीधी फर्क है। लौंडी का बेटा। पौलुस कहता है मेरे अंदर दो पहलवान कुश्ती कर रहे हैं, दो तरह की सृष्टि मेरे अंदर लड़ रही है। समझ आंटी गल दी? तो क्या है भाई?
लौंडी का बेटा जब हम पैदा होते हैं तो साथ लेकर पैदा होते हैं लौंडी के बेटे को। ये लौंडी का बेटा जब तक यस्सु के खून के जरिए से खुदा का बन नहीं जाता, लौंडी का बेटा साथ ही होता है। और पौलुस कहता है ये पुरानी इंसानियत जो हमारे साथ पैदा होती है वो लौंडी का बेटा होता है। और जब ये लौंडी का बेटा है और इसको हम निकालते नहीं अपनी जिंदगी से, मतलब समझ, लौंडी का बेटा, गुलाम का बेटा, वो क्या है? मिस्री सृष्ट, गुलामी की सृष्ट, फैशन पता है ज्यादा कहां से निकला था? तहजीब कहां से ज्यादा निकली है? मिस्र से, इजिप्शियन। बड़े बड़े मड़कड़े, बड़े बड़े जनाब मूंह पेट, अजीब तरह की हालत उत्ते जनाब सप का खगा रखा हुआ सिर दे उत्ते, समझे? अध नंगे मर्द भी और औरतें अध नंगे समझो? हाफ बेयर कहते हैं, हाफ बेयर, अध नंगे। और ये पता है आपको, जब आदम और हवा ने गुनाह किया था तो वो भी अधनंगे हो गए थे, पत्तों में अधनंगे ही थे। वैसे पहले तो पूरे थे पर पता नहीं था, लेकिन उसने बताया भाईजान तुसी पूरे नंगे हो ना, क्या लै फिर असी अधनंगे हो जाने हैं। अधनंगे होके भी छुप रहे थे, और आज लोग अधनंगे होके अपना आप दिखाते हैं, कहते हैं ये नया फैशन आया है। ये क्या आ गया है? माफ कीजिएगा मेरी बातों को, बातें ऐसी ही हैं। वो कहते हैं इसमें क्या है, इसमें जो आप कह रहे हैं ना क्या है, ये लेके डूबे ही डूबेगा, आज नहीं तो कल डूबेगा। इसलिए बेहतर है डूबते हुए को यीशु सहारा है, उसको पकड़ लें। हालेलुया। क्या हुआ है भाई? इस बादशाह ने, युरबाम ने, पहला सलातीन 12वां बाब और 25वीं से 30वीं आयत में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर ये वहां पर जाते हैं तो इनके दिल उस बादशाह से लग जाएंगे और ये उसके साथ मिलकर मुझे कत्ल कर देंगे। कत्ल दी गड़ी अड्डी आखिर आई सी, नहीं नाम ही मरवा दे, पर इतने कत्ल का जिक्र क्यों किया? क्योंकि युरबाम की इसकी तमसील बन रहा है, दुनियावी तंजीमी सिस्टमैटिक कलीसियाओं की, जो कि अकीदों पे निर्भर करती हैं, अकीदों पे टिकी हुई है, आमीन, जो कि रस्मों पे टिकी हुई, जो कि दुनियादारी पे टिकी हुई है, जो कि दोगले दरख्त की पैदावार है। साइंस भी है उनमें और खुदा भी है। सुबह चर्च, शाम को क्लब केड़ा बॉडी बिल्डिंग वाला नहीं 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 नहीं, वो नहीं मैं कह रहा, शीशे वाला, कुप्पी वाला गल। और अगे जिंदगी किदी किदी रहनी है, किदी किदी नहीं, अज तो कहता मैं कुछ ना कुछ, समझते हो कि नहीं? समझते के हो, खुदा बरकत दे। तो ये है जनाब हाइब्रिड कंडीशन, मिलावटी गिरावटी कंडीशन। गिरावटी किन्हों कहते हैं? डिग्गी हुई कंडीशन। हालेलुया। क्या खुदा इससे खुश था? नहीं, पर खुदा ने एक प्रोग्राम बनाया, उसने कहा यार मेरे ही बच्चे ने, बचाओ इन्होंने। किंज बचाओ? कुर्बानी के जरिए, खून के जरिए। और खून आज का क्या है? रूल कुद्स। बच्चा किससे पैदा होता है? बोलिए, खून के खुलिये से। खून के खुलिये से बच्चा पैदा होता है। किसके खुलिये से? खुलिये से, बात समझ रहे? खून के खुलिये से, आमीन। हम किससे पैदा हुए? खुदा से। खुदा के पास कौन सा खून है? रूहानी। हम कौन से खुलिये से पैदा हुए? रूहानी खुलिये से। इसलिए हम ना झुकेंगे ना टूटेंगे, है ना? मर भी जाएंगे तो मरे नहीं बल्कि जिंदा। जो कोई मुझ में रहता वो मर भी जाए, बल्कि मर भी जाए तो मरा नहीं बल्कि जिंदा। पौलुस कहता है हम जिंदा हैं तो भी मसीह के और मरे तो भी मसीह के। जीना मेरे लिए मसीह में और मरना क्या है? नफा है। जियांगा तो मसीह से, मरांगा तो नफा ही है। हाथी जनाब जिंदा किन्ने दा? लख दा ते मरिया। पौलुस कहता है लोगों की नजर में हम क्या हैं? मुर्दा हैं, पर बहुत से लोगों को जिंदगी दे जाते हैं। लोगों की नजर में हम मुर्दा हैं, लेकिन बहुत से को जिंदगी दे जाते हैं। लोगों की नजर में हम मुफलिस हैं, गरीब हैं, लेकिन बहुत से लोगों को दौलतमंद कर जाते हैं। हालेलुया। ये ताड़ा पादरी नहीं कला, ये तुसी हो जनाब। कोई प्यो दुनिया ते ऐसा है जेड़ा कहे मेरा पुत्र मेरे नाल वड्डी शान च ना होवे? भाई मैं तो कोई ऐसा बाप नहीं देखो कहेगा पुत्र मेरे ना तो ज्यादा ऊंची शान वाला होता है। होता है कि नहीं? तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये काम जो मैं करता हूं तुम इससे बोला करो, बड़े बड़े काम करोगे। मैं तो खाली पुत्र बह के दुआ करना, सर आपने याद करना। समझ रहे मेरी बात?
तो दुनिया को ठीक करेगा। ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ। तो आप और मैं किसकी नस्ल है? यीशु की। पूरी दुनिया का खुदा है। आपने कितने पकड़े हैं? कितने पकड़े हैं आप लोगों ने? जवाब है फिलहाल तो भाई जी, मतलब वेरी गुड, समझ गया। एक थोड़ा सी उन्होंने बन के गंड है ना, जाके खड्डे च पाया तुम। इन्ना थोड़ी असी एल्डर है, इन्ना थोड़ी असी प्रेसिडेंट है, इन्ना थोड़ी असी ओ ते फलाना टमकाना। साडा काम है ते पादरी दा काम है। पादरी ते रहो फिर तुसीं। वैसे तो पापा भी सानूं चंगे नहीं लगदे, गल जू करदे ने। पापा ते कढ नहीं ना सकदे, कढ इस बारे सकते। इस पापा नूं 2 मिनट च कढ के पासे ला दिंदे हो। ऐ पापा जी तुसीं साइड ते होयो, मैं जरा दुनिया दे पापा नूं वेखां। समझ मेरी बात? साथ रहेंगे बरकत। तो क्या है, यरबाम ने क्या किया है? वहां पर उसने कहा वहां पर जाना तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम क्या करो यहां पर, ये मैंने तुम्हारे लिए एक अरेंजमेंट किया है, एक तंजीम, 2 तंजीमी बछड़े बनाए हैं और इसमें मैंने खुदा के कुछ लोगों को भी शामिल कर लिया है। समझे मेरी गल? शैतान पता की कहता है, इधर राइट बाजू है, ये इनू तो पहले कटो। इन्हें चर्च बनवाया है, बिल्डिंग कल्ला ही शेर से। इन्हें जनाब वो तो बंदे लैन दे, थल्लों मिट्टी टोई सारा कुछ। यार बड़ा कम करता है, ये टुट जाए ना तो यह तो बंदा है मरिया में डो डिगेगा कल। लोग ऐसा सोचते हैं, और लोगों में कौन सोचता है? 20 सोचते हैं, और कभी कभी वो कामयाब भी हो जाए। और उसे कामयाब करते कौन है? हम। समझ रहे मेरी बात? और खुदा को हराते कौन है? हम। बात मेरी समझे कि नहीं समझे? तो युरबान कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए यहीं पे अरेंजमेंट किया है, कूजी माहौल है, बड़ा गर्म और बेहतरीन किस्म के हीटर वीटर लगे हैं, नीचे भी बिल्कुल ठीक है, कुर्सियों वाला माहौल है सारा। इन्वर्टर हमारे पास, एसीज लगे हुए हैं, गर्मियों को ठंडी हवा और सर्दियों को गर्म हवा देते हैं। आप टेंशन में इधर ही कुछ कर लें, इधर ही कुछ कर लें। क्या कर लें? ये अभी बटने लगी है शायरमानी, खा लीजिएगा। मैसेज वाला कहता है वेरी गुड यार, कुजी माहौल, मीठे लोने चौल, चुप करके फड़दा दिखा रहे है ना। कौन वेखण दे है? जो होएगा उधर भी खा लांगे कि केड़ी गल है। सारिਆਂ ਨੂੰ राजी रखो, भावें रब राजी। और खुदा रब ने की क्या है? अक्सरों से खुदा राजी, जितनों से वो राजी है ना, उनसे वो क्या करता है? सुलह। असी कहने सारी सुलह चो, सारे नहीं है, ये भी जरा बयान चो निकलो। हम सारे खुदा के साथ सुलह में नहीं है, और मुदई दे नाल असी राह दे विच सुलह भी करनी है। तो क्या हुआ वहां पर? युरबाम कहता है वहां पर जाना तुम्हारे बस की बात नहीं, यहीं पर रुको, तुम्हारे लिए अरेंज किया। और किया क्या? एक उसने कहां पर? कोहस्तानी मुल्क के अंदर एक शहर तामीर किया, और वहां पर उसने एक बछड़ा रखा, और एक उसने बछड़ा बैतल, यानी उसका नाम बैतल था, और उसके बाद एक उसने दान शहर के अंदर रखा, दान के नाम से। आमीन। और वो दगा किसके साथ कर रहा था? क्या लोगों के साथ? लोगों के साथ नहीं। और उसको जब खुदावंद यीशु मसीह मिले थे तो उसने पूछा तू कौन है खुदावंद? और खुदावंद ने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू यीशु नु किथे हो शैतान डया है, शैतान ते ओदे क्या ख्याल है? और यीशु मसीह ने कहा बड़ा खतरनाक, उसने कहा पहने की यार पर लात मारना तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये तू खतरनाक काम कर रहा है, तेरे साथ बड़ा बुरा होने वाला है। समझे मेरी बात? उसने कहा खुदावंद बता मुझे मैं क्या करूं। कहता जा एक बंदा आ रहा है हननिया, उसके पास चला जा, उधर हननिया को कहता चल बेटो पादरी साहब जाके उधर से दुआ करो। उन्हें क्या उहदे वास्ते टके दा बंदा नहीं हो तो सानू जलील करके रहा था। उन्होंने क्या मैं कह रहा जा, जब मैं कहता हूं तो फिर साइंस नहीं लड़ानी, फिर जाना है और तुझे जो कहा है वो करना है, रिजल्ट बाद में मैंने देना है। पौलुस कहता है बोने वाला कोई और है, पानी देने वाला कोई और है, मगर बढ़ाने वाला खुदा है। तू जा, तू कह, तेरा काम है कहना। अरे भैया साथ रहेंगे तो बरकत मिली। तो क्या हुआ? वहां पर जाना तुम्हारे बस की बात है। यहां पे मैं बछड़ा बना रहा हूं। उसने 2 शहरों में बछड़े बनाए, 2 शहरों में उसने नस्ल किए, और इससे खुदा पता है ना तख्तियां टूट गई थी इसराइल उसके मूसा के टाइम पर, गैरत आ गई थी, और ये गैरत को जोश दिलवाया। और इसके साथ मिल कौन गया? दान और इफ्राइम, ये सारे मिल गए उसके साथ। मेरी बात समझे? इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको एक एक बात समझ आएगी। हालेलुया। और जब मिल गए तो पाक कलाम में लिखा है जो बुतों की कुर्बानियां और बुतों के साथ शामिल हो जाता है वो खुदा के कबीले, उसकी नस्ल, उसकी जमात से काट दिया। वो फिर कोई भी, चाहे वो पुराने बनी इस्राइल यानी याकूब की नस्ल के 12 बेटों में से ही क्यों ना हो, चाहे वो यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से चुना हुआ यहूदा ही क्यों ना हो, समझ आ रही गल थी, चाहे वो अपने जमाने का नबी यूना ही क्यों ना हो,
काटा नहीं गया, लेकिन खुदावंद से ट्रायल में से गुजारा। मैं एक रेफरेंस लेके आपसे बात कर रहा हूँ। खुदावंद वो अपना काम कराता है, और अगर कोई नहीं करता तो खुदावंद से बाहर हो जाता है। और यहाँ पर यूहन्ना की इंजील के बीच में हमने जो पढ़ा है ना, 67 और 68 आयत के बीच में, कि वो छोड़कर चले गए। उनको लगा वहां ठीक है, उनको लगा युरबाम जो कह रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, उनको लगा जैसे युरबाम कह रहा था यहां पर रुको, ये सिस्टमैटिक है, ये नबूवती मामला तुमसे समझ नहीं आएगा। और उसने भी उनसे कहा यरूशलेम में जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, खुदा के घर में जाना, यरूशलेम सलामती का घर, जहां पर खुदा की सलामती, प्रोटेक्शन है, खुशी है, बहाली है, खुशहाली है, आमीन, वहां पर जाना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि वो तो बाद में आएगी, पहले गल मन नहीं पेगी था मोहन, वो तुम नहीं मानोगे। भाई जी जानते दे, फिर पता चलेगा क्लास से अटेंड करिए, सवाल के डाकू औखा, बाद चो पता चलेगा टीचर समझा देगा सानू आसान करके। उन्हें कहा नहीं आनी नहीं, तुम समझ, उत्थे नहीं जाना, जे वो आ गई तो फिर मेरा की बनेगा, मेरा तो मुलक गया, मेरी तो मिशन गई। अब हुआ क्या, और उसने 2 बच्चे बनाए, और ये बात खुदा को पसंद नहीं आई, खुदा की गैरत को जोश है, और उसने वहीं पर क्या कर दिया, फैसला कर दिया। अब हम चलेंगे मुकाशफा की किताब के अंदर, निकालिएगा जरा मुकाशफा की किताब, चलेंगे हम, और वो वाला हिस्सा निकालिए, और इस पर उंगली रखनी है आपने, उंगली उसको उस पे वो रखना था आपने रिबन, क्योंकि जाना हमने वहीं पे, फिर दोबारा फटाफट जहां पर 1,44,000 को अलग किया जा रहा है। आखिरी चैप्टर्स में चले, मुकाशफा की कुछ चंद आखिरी अबवाब। हाँ जी, निकालिएगा 7वां बाब, चैप्टर 7 निकालिएगा, और इसकी 5वीं आयत पढ़िएगा प्लीज, 5वीं आयत से पढ़िएगा, और 2-3 आयतें पढ़ के फिर आप आखिरी आयत पढ़ दीजिएगा, 8वीं आयत जी पढ़िएगा। यहूदा के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। यहूदा के कबीला में से 12,000 पर पहला बेटा, समझ ले कि पहले को यहां से शुरू कर दिया उसने, जो भी था। आगे रोबन के कबीला में से 12,000 पर, आगे जद के कबीला में से 12,000 पर, हाँ जी, आशर के कबीला में से 12,000 पर। और ये कितने बेटे हैं टोटल, काउंट करो, ये 12 ही होंगे, 12 ही होंगे, आमीन। इसमें मुझे आप दान निकाल कर बताएं जरा, निकालिए दान, दान को निकालिए, नहीं है ना, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, दान का नाम क्यों नहीं, 12 बेटे दान ही सी, नहीं आ रहा भाई, पढ़ा है ना, बच्चे भी जड़े पढ़े लिखे ना, कितने दान नजर आ रहे हैं, दाल अलफ नून दान नहीं आ रहा है, वो किधर गया 12वां बेटा, क्यों भाई, वो किधर गया, एक बच्चा ही गायब है विचों, किसी का जनाब गायब हो जाए, काम खराब हो रहे, इतों ही नस्ल चल रही हैं लगे, बोलिए, छोटा मोटा बेटा नहीं है। कज़ात दी किताब दे विच ना, समसून ऐसे ही नस्ल जो आया ही, दानियों की नस्ल में से, समझियो कि नहीं समझे, अब दानियों की नस्ल का मतलब है दान के कबीले की नस्ल में से समसून पैदा हुआ। बड़ी बड़ी गल है, इतना कुछ है और यहां पर दान है ही नहीं। ऐ ते आखिरी उड़न का टाइम है, बचाए जाने का टाइम है ना, चुनाव का टाइम है, बरकत का टाइम है, दान है ही कोई नहीं। एक बच्चा लबो छापी ते सारे बैठे ने चंगेर दे, किसी ने दसिया है, फिर किन्ने दसना, तंजीमां नहीं दसन लगियां था। और बाय द वे सानू भी नहीं सी पता ये दसिया किन्ने में, सानू कौन बताया, किसने बताया, किसने, नबी ने। और कहता है वो जो पेशवा और नबी मैं तुम्हारे पास भेजता हूं उनकी सुनो भाई, नबी कौन होंदा है, किहड़ा नबी दा काम की नबियां ना, नबी बनी इजराइलियां चाहते हन असी मसीह होने आ, साडा नबी यसू। ते यसू नु गए हुए किन्ने साल हो गए, किन्ने 25 साल, 2025 साल हो गए, ते उदों दा कौन नबी है तुहाडा? वैसे भी वो अगर होवे भी ते किहड़ा असी ओनू दिल च रखने, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ है। तो यहां पर वो केस था जो दोगले बादशाह के साथ मिलकर उसने किया, युरबाम के साथ, उसने उसे मौका दिया, उसकी पैरवी की, उसके साथ रहा, उसको अपना इलाका दिया कि इत्थे काट अपनी मिशन। समझ
ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ ਦੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੋ ਭਾਈ। ਅਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਖਰ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਖਰ ਹੈ ਉਹ। ਜੇ ਉਹ ਫਖਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਬਸ ਆ ਜਾ ਬਿੱਦਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਆਸਾਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਸਾਨੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਾਨ अगर चाहते हो हमसे होना। जिंदगी की बातें तो तुझे छोड़कर कहां जाए। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, तारीफ हो यीशु के नाम। मेरे अजीज बहनों भाइयों प्यारे बच्चों, समझो दान मिल गया, इजराइल का बेटा है ये, इसकी नस्ल से बड़े बहादुर पैदा हुए हैं, जबरदस्त लोग पैदा हुए जिन्होंने हिस्ट्री कायम की है। लेकिन आखिर में क्या हुआ? प्यो ही डिग पिया। आखिर अव्वल और अव्वल आखिर हो जाएंगे। क्या ये समझ नहीं आ रही? कैसे हो जाएंगे? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ। और दान को यहां से निकाला गया, साइड पे कर दिया गया और दान को इस इंडेक्स में से निकाल दिया गया। अगर दान ਨੂੰ खुदा ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ तो उन्होंने कहा जेड़ा हर झूठी बात का मुकाशमा, लेकिन हर एक झूठी बात का घड़ने वाला है ना, उसका सुनने और उसने मानने वाला, सब आपकी झलती हुई झील में जाएंगे। चाहे वो पैदाशुदा ने मेरे तो, चाहे उन्होंने मैसेज का बपतिस्मा लिया, चाहे उन्होंने बाइबल मुकद्दस का सही बपतिस्मा लिया, चाहे उन्होंने सारी मैसेज की हिस्ट्री जानी है, लेकिन अगर कितने डंडी मार देती हो ना, हवा ने थोड़ी जी डंडी मारी सी, बहुत ही नहीं सी वैसे मारी, है ना, उन्हें कहा छूना भी नहीं। अच्छा डंडी मार, अगर जरा सी मारी तो खुदा को 100% चाहिए, 99% 9 पॉइंट नहीं चाहिए। ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਿਲਾਵਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ। ਆਪ ਬੋਲੋਗੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਵਹਿਮ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੀਤ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਚਾਏਗਾ ਉਦੋਂ, ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਰੱਖੋਗੇ। ईमान अंदर सही नहीं तो बारों बारों पालिश, एक काम नहीं करना सा। आमीन, मेरी बात समझे आप? खुदा तो बरकत दे। तो क्या हुआ यहां पर दान नहीं है? क्यों नहीं है? उसकी वजह है, मैंने पहले पढ़ाई है, पहला सलातीन 12वां बाब 25 से 30। और आप, मैं चाहता हूं 12वां पूरा पढ़े। आपको समझ आए युरबाम कित्थों आया, तानू समझ आए ये रहबाम कित्थों आया। अगर रहबाम और युरबाम के बीच में दो इलाके वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत गड़बड़ पैदा हो रही है, 2 बछड़े सोने के उसने बना लिए हैं और उसने खुदा नाराज हुआ उससे, और बहुत से खुदा के लोगों को रोक दिया उसने बैतलहम में जाने से, यरूशलेम में जाने से, और उनको कह रहे तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है गुमराही फैला रहा है, दगा दे रहा है, करप्ट बादशाह वो, है ना, वो डिसेप्शन, गुमराही पैदा कर रहा है। आमीन। जबकि आप तो जानते हैं खुदा बैतलहम में मिलता था, उसने अपने लिए जगह बैतलहम में खुदा के घर हैकल के तौर पर बनाई। ऐसा था कि नहीं? आमीन। तो मेरे अजीजों, अगर यरूशलेम वालों के साथ बनी इस्राइल यानी याकूब के 12 बेटों में से किसी ने खुदा के कलाम को नहीं जाना, अच्छा मामला यह है कि दान की जगह पर आ कौन गया? 12 दे पूरे ने नहीं, शिकार नहीं पाया। बोलो, बोलोगे तो बरकत मिलेगी कुछ। ओके, नहीं कोई मसला नहीं। आपको वाकई याद होगा यूसुफ कहां पर था मिस्र में? आपको पता तो चले ना कितने जड़ मिलती भी है जाके। आमीन। जब यूसुफ जो था उसके भाइयों ने उसे उठाया, कुएं में डाला, अदरंगा किया, फेंका, बिक गया, इस्माइलियों के कबीले के हाथ बिका और वहां से जाकर सीधा पहुंच गया फूतीफार के पास। फूतीफार के जरिए से फिरौन के महल के अंदर। फूतीफार अलग है और फिरौन अलग है। फिरौन एक टाइटल और फूतीफार एक नस्ल है। फूत की नस्ल फूतीफार, फोत की नस्ल फोतीफार। फोत, फोत ते वाला फोत नहीं, फोत हो गया ओला नहीं, फेवा फोत तोए, फोत तोए वाला है ना, तोए जोए गैन गैन। समझ आई गल दी? ये फोत और ये किसकी नस्ल थी? ये सारी आ रही थी नमरूद की, काइन की नस्ल से आगे चलते चलते चलते। ठीक है, उधर चला गया, फिरौन था बादशाह उस टाइम पे मिस्र का। समझ रहे मेरी बात?
اور ادھر اس نے خوابوں کی تعبیر کی, اور میں شارٹ کر رہا ہوں, اس کو بتا نہیں رہا کیونکہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. وہاں پر اسے مقام ملا, اسے رویا آئی بادشاہ کو, بادشاہ نے کہا کہ رویا کا کچھ بتایا جائے, اور اس نے رویا کا بتایا کہ بھائی اگلے 7 سال پوری فرٹیلائزیشن کے سال ہیں, پوری زرخیزی کے سال ہیں, بڑی فصل ہونے والی ہے, آمین. اور اس سے اگلے 7 سال تباہی کے سال, ایک دانہ زمین تے نہیں ملے گا, تو قطرہ نہیں ڈگے گا پانی تے زمین دے, زرخیز نہیں ہوگی, نم نہیں ہوگا, ہے نا, مٹی. تو یہ مٹی جو ہے وہ نم نہیں ہوگی, پرابلم ہے اس میں. تو اس نے کہا اب کیا کیا جائے, اس نے کہا کرنا کیا ہے, دیکھ لو یہ آگے زرخیزی کے سال ہیں, کچھ آپ یہ کرو کہ فصل جو ہے وہ صحیح محنت کر کے پیدا کرو تاکہ اگلے سال جو بھوک کے ہیں وہ ہمارے کٹ جائیں. اس نے کہا یہ کام پھر تیرے علاوہ اور کون کر سکتا, تو نے ہمیں راستہ دکھایا, اب تو ہی ہمارا لیڈر ہے. اور اس نے انگوٹھی پہنائی, اس کو قید سے نکالا, انگوٹھی پہنائی, تخت و تاج پہ کتانی لباس بٹھایا. اس نے کہا یہ اب سے جو آرڈر یہ کرے گا یوسف, وہی آرڈر مانا جائے گا. اور یوسف نے اپنی حکمت عملی سے مزارے قائم کیے, بیکار لینے والے قائم کیے, بہت سے اور محنت کے گروپ بنا دیے اس نے, اور اتنی فصل پیدا کی ہمارے یوسف یسوع مسیح نے, اتنی فصل پیدا کی ہمارے یوسف یسوع مسیح نے. میں بتاؤں آپ کو 120 کی جماعت سے شروع کر کے فرٹیلائزیشن کے 7 سال شروع ہو گئے, بہت روح اترا, آمین. لیکن لوگوں نے اس روح کو گوا دیا, اس روح کو ناجائز استعمال کیا. روح سچا تھا لیکن اس کا استعمال برا تھا. پھر 7 سال اور شروع ہوئے, پچھلی برسات 7 سال شروع ہوئے قحط کے, اور یہ ابھی تک چل رہا ہے, آمین. لیکن ان 7 سالوں میں جب قحط پڑا تو کیا یعقوب کا خاندان بھوکا مرا؟ نہیں مرا. یعقوب کا خاندان کیا بھوکا مرا؟ نہیں مرا بھائی. یعقوب یوسف کا باپ تھا, دنیا پر کال ہے, پر یوسف کے پاس مال ہے, پیسہ ہے, یوسف کے پاس سب کچھ ہے. یوسف کے پاس کھانے کو روٹی ہے, ہمارے یوسف کے پاس, یسوع مسیح کے پاس. پیچ اپ کرتے جائیں, کمپائل کرتے جائیں. ہم کسی کی کتھا نہیں پڑھ رہے, وہ یہودیوں کے ساتھ ان کا تھا معاملہ بدنی, لیکن ہم وہاں سے اپنے یوسف کو ڈھونڈ رہے ہیں, آمین. ہمارے یوسف کے بھائیوں نے بھی اسے پکڑا اور ڈال دیا, گڑھے میں ڈال دیا. گڑھا کیا ہے؟ قبر. آمین. کیوں ڈالا؟ کیونکہ باپ اسی سے پیار کر, یہ میرا برگزیدہ بیٹا, اس سے میں خوش ہوں, سب سے خوش نہیں ہوں. جناب بڑے نبی آئے, بڑا کچھ ہوا, بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا, اس سے میں خوش ہوں بس. جو کہ اس کی مانے گا وہ زندگی پائے گا, اور جس کی نہیں مانے گا وہ کلیسیا میں سے اور قوم میں سے کاٹ دیا جائے گا. اس نے کہا پاپا جی, ماما جی, آپ بھی مجھے سجدہ کریں گے؟ اے بھائیوں, بڑے بھائیوں, اس سے بڑے بھائی, اس سے بڑے بھائی, بڑے بھائی, سارے 11 کے 11 بھائی, آپ لوگ مجھے سجدہ, 11 نہیں مطلب اس ٹائم 10 تھے. جو 11واں تھا وہ یوسف کی قید کے دوران پیچھے پیدا ہوا, یوسف ہی کا چھوٹا بھائی. ویسے یوسف کا چھوٹا بھائی, ہمارے یوسف کا چھوٹا بھائی کون ہے؟ ہمارے یوسف کا چھوٹا بھائی برائڈ ہے. یسوع نے کہا, یسوع مسیح کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہمارا بھائی بھی ہے. اور جیسے یسوع مسیح اکیلا باپ کا برگزیدہ تھا, اسی طرح اس کا بھائی, پتہ ہے آپ کو, اس نے ایک شرط رکھی تھی اس کے بھائیوں, اپنے بھائیوں کے سامنے, وہ پہچان نہیں رہے تھے. اس نے کہا تمہارے پیچھے اور کون کون؟ اس نے ایک باپ ہے ضعیف سا ہے, اور ایک بیٹا ہے, اس کا نام بنیامین ہے. پہلا بیٹا اس کا کسی نے کھا پی لیا تھا, گم ہو گیا تھا, اس لیے وہ بڑا پریشان تھا. اب وہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ دل لگاتا ہے, کہتا ہے جب تک وہ نہیں نہ آئے تانوں کھان نو کچھ نہیں ملنا, لے کے انہوں نال. سمجھنے میری بات؟ ہمارے یوسف کا چھوٹا بنیامین بھائی نے ٹھیک کہا کلیسیا ہے, لیکن ہم اس کو دوسرے انگ میں دیکھتے ہیں. بنی اسرائیل کا 1,44,000 کا حصہ چھوٹا بنیامین ہے, تھوڑا سا حصہ نکالا گیا. آمین. ہمارے پاس تو بڑے کا حق ہے بھائی, بھول گئے ہو؟ وہیں پہ چلتے ہیں. غلامی کے دنوں میں ساری دنیا میں راج نہیں, غلامی کے دنوں میں کہیں پر میسج نہیں, اور میسج کہاں پہ مل رہا ہے؟ یوسف کے پاس. اب وہ بھیج رہا ہے, کہہ رہا ہے چھوٹے کو لے کے آؤ تو پھر دوں گا میسج. اب وہ لے کے گئے, لے کے آئے, ہے نا, لے کے آئے ساتھ اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اسرائیل کو بھی ساتھ, اور غیر قوم کی دلہن کٹھی ہے. لیکن غیر قوم کی دلہن کس کی ہے؟ یوسف کی بیوی. لی کہاں سے گئی؟ کس نے اس کی شادی کروائی؟ یوسف کی
बादशाह फिरौन खुदा की तमसील है वो, उसने यूसुफ को इख्तियार दिया और उसे एक बीवी भी दी, और उसने जब अपने भाइयों के सामने गया तो उसने बीवी को पीछे भेज दिया। बीवी उस टाइम पर मौजूद नहीं है जब भाइयों पर जाहिर हुआ है वो। चंगी गल है यार, जाहिर कहीं नहीं होया, आज तो बोली ना समझा जाता है, बोली ना कैसे समझना है, वो बोल ही मिस्री जुबान रहा सी, गैर कौम की जुबान बोल रहा था। मेरी गल समझ, अगर वो इब्रानी बोलता तो समझ आते, वो मिस्री बोल रहा था और तर्जुमान थे जो तर्जुमा कर रहे थे उसके बारे में, अगर वो इब्रानी बोलता तो उनको समझ आ जाती कि मिस्र च इब्रानी की करदा पिया। समझ आई गल दी? क्योंकि उदो गुलामी थोड़ी चलती पई सी, उदो नहीं सी चलती पई गुलामी। आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? अब मामला क्या हुआ, साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। उसने जब देखा अपने भाई को और उससे मिला, और फिर दीगर भाइयों को भी उसने अपना आप फिर खोला उनके सामने कि मैं यूसुफ हूं तुम्हारा भाई, आमीन, और वो गले लग के रोए और बहुत उससे कहा कि हमने तेरे साथ बुरा किया। उसने नहीं नहीं नहीं, तुसी समझदे पे सो कि पादरी ना बुरा कर लीए, पर वो ताड़ा बुरा मेरे वास्ते ते ताड़े वास्ते भी बरकत दा बायस बन गया। अगर तुसी मैनू खड्डे च ना सुट दे ते दुनिया दी नजात किंज हुंदी, अगर तुसी मैनू खड्डे च ना सुट दे ते मैं तीसरे दिन जी के ते ताड़े वास्ते हमेशा दी जिंदगी दा सबूत किंज देंदा, अगर तुसी खड्डे च ना मैनू सुट दे ते मैनू फिरौन बादशाह इख्तियार किंज देंदा, अगर तुसी मैनू खड्डे च ना सुट दे और मिस्रियां दे हाथ और कैद और मैं रोया और ख्वाब ना बयान करदा ते किंज ए पूरे मिस्र दे विच अनाज हुंदा जिहड़ा मैं उगाया। तुसी मैनू खड्डे च ना सुट दे ते खुदा ने जिहड़ी मैनू इख्तियार वाली अंगूठी दी जिसमें मेरी मोहर लगेगी, अंगूठी बोर के लिए होती है, मोहर वाली अंगूठी। आजकल तो इंज मार दे ना मोहर, उस वक्त अंगूठी की मोहर होती थी, लगती थी, और मोहर वही लगाता है जिसके पास इख्तियार होता है। यहां पर उनको उसकी मोहर है, हालेलुया। अब उसने मोहर लगाई और वहां पर क्या है लिखा है, वो उसके साथ रहने लगे, आमीन। लेकिन यूसुफ ने एक बात कही, याकूब ने अपने बेटे यूसुफ से कही कि मिस्र हमारी जगह नहीं है, खाना हमें मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि तू यहाँ पे गुलामी के घर में, यहाँ दुनिया गुलामी का घर है, लेकिन यहाँ पर कोई है भाई, कौन है? हमारा यूसुफ, खुदा यूसुफ मसीह। ये दुनिया गंद से भरी हुई है, मिस्र है, चिक्की चढ़ाई है, आप समझ रहे हैं, लेकिन हमारा यूसुफ कहीं यहीं पे है जहां पर 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके बीच में हूं, अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा, मोरजे वेखो वंडदा फिरदा, नामे मसीह नूं जेड़ा पुकारे अपने लहू दे नाल मोहर रंगदा फिरदा, मोहर लांदा फिरदा, हालेलुया। जेड़ा पुकारे ओनू ला रहा है, जो पुकारे उसे लगा रहा है ना। जिसके कान हो वो सुने, जो सुनेगा वो तो पुकारेगा। वो ये तो आवाज मेरे औकाब की है, जो सुनेगा। सप दे कान हुंदे ने, एहसान के बच्चों, तानू किन समझ आ गई? तानू ते आउंदी नहीं, क्योंकि सुनना, ईमान सुनने से फायदा होता है, और सुनोगे कि सप दे बच्चे किन सुनेंगे? सुन नहीं सकते, सेंस कर सकते हैं, सेंस जमीन से रैप्टिल, लेकिन सुनना एक अलग चीज है। हम सेंस नहीं करते, हम सुनते हैं। आमीन, साथ रहेंगे तो बरकत। तो ये उन दिनों की बात है, तब हुआ क्या कि वहां पर रोटी चल रही थी, और ये सारे मामला वहां से चले, और फिर याकूब ने कहा कि मेरी हड्डियां यहां पे ना रहने देना, वापस उस सरजमीन में जहां पर खुदा हमें लेकर जाएगा वहां पर लेकर जाना। आमीन। और फिर ये मामला आगे चलते गए। याकूब के 12 बेटों में से जब यूसुफ के गैर कौम में से बीवी जो ली गई, उसमें से 2 बेटे पैदा हुए, इफ्राइम और मुनस्सी। आमीन। अब इफ्राइम और मुनस्सी में से एक बड़ा था और एक छोटा था, और उसने यूसुफ ने अपने हवाले से दानी तरफ उसने बड़े बेटे को और बाई तरफ छोटे को रखा। तो मुनस्सी की बरकत थी, मेरी बात समझ रहे हैं, वो छोटे की तरफ गई, यानी बनी इस्राइल की बरकत छोटे इफ्राइम की तरफ, हमारी तरफ आई। वहां पे एक तमसील, और कैसे हुई? क्रॉस के जरिए से, हाथ को ऐसे कर दिया याकूब ने, और याकूब वहां पर खुदा की तमसील है। और जब ये क्रॉस के जरिए इफ्राइम की तरफ, तो मामला ये हुआ है कि वहां पर बरकत की कन्वर्जन हुई, और साथ में पुत्र अधिकार, जिसको हम कहते हैं सनशिप मिली, सनशिप मिली। और सनशिप की क्या है कि मनस्सी को वहां पर यहूदा के कबीले में यूसुफ का भाई के तौर पर काउंटेबिलिटी मिल गई। यहां पर मनस्सी को, सॉरी मनस्सी को यूसुफ के भाई के, तो हालांकि यूसुफ का वो बेटा था। मुझे बताएं, एक बड़ा मामला है हल करने वाला, समझ लें इस बात को, टेक्निकली पॉइंट है। याकूब ने किससे बरकत ली थी? अपने बाप से। याकूब ने बरकत नहीं, वो छीनी वाली बात नहीं मैं कर रहा,
ली किससे थी? छीनी तो दूसरे से थी ना, हक छीना ना, छीना तो उससे, लेकिन वो हक जो था लिया किससे छीन के? बाप से। तो बाप बेटे को क्या देता है? यूसुफ का बेटा कौन था? मनस्सी और इफ्राइम। बरकत किसको देनी चाहिए थी? यूसुफ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਆਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਟੋਰੀ में क्यों ਦੱਸਣ ਡਿਆ कि याकूब ने अपने बाप से बरकत ली, यस्सू ने अपने बाप से रूप आया। बात समझ रहे हो? तो बरकत की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बाप से आती है। यहां पर दादे से आ गई है यार, क्यों आ गई? क्योंकि मनस्सी को एज ए भाई खुदावन ने 12वें बेटे दान की जगह पर लेकर आना था। गल समझ आई है? हाँ जी। ते नाल ही उन्हें भी समझा दिता आ जे क्रास, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। 12 ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੱਡਿਆ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਨਸਲਾਂ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਨਾ। ਆਮੀਨ। यानी इत्थों ही नस्ल चली है ना, यहूदा का कबीला, रोबन का कबीला, आशर का कबीला, जाद का, और ऐसे चलते चलते सब मनस्सी, नफ्ताली और है ना लावी का कबीला। तो 12 बेटियां दी नस्ल लगे ना, सिर ते आई ना 12 बेटे, और मनस्सी को सर बना दिया खुदा ने। क्यों बनाया? क्योंकि दान ने करतूत खोला। दान ने क्यों करतूत खोला भाई? समझो मेरी। अच्छा आप बोलोगे यार ये तो केस बहुत पहले का है, तो दान ने तो बहुत बाद में हरकत की। तो आपको नहीं पता जब ईसाऊ और याकूब ने पैदा होना था? क्यों जी? तो खुदा ने पैदा होने से पहले कुछ कहा था? क्या कहा था? बड़ा छोटे की ऊंची बोलो खिदमत करेगा। वो किंज करेगा? खुदा ने पहले रख दिता सी मामला कि ईसाऊ की नस्ल याकूब की नस्ल की खिदमत करेगी। भावें धोखा समझो, जनी मर्जी है, बरकत खुदा ने देनी देनी सी। पहले ही डिसाइड कर दिया कि बरकत एंड ट्रांसफर हुई, अब बेटे की जगह पर मनस्सी चला गया। दान ने आगे जाके हरकत गोलनी थी, खुदा को पता था आगे चल के काम खराब होना, खुदा ने पहले से उसका अरेंज किया। नबी बयान करता है भाई विलियम ब्रानम अपने जमाने के मैसेज के साथ, वो एक बात कहते हैं कि इससे पेशतर के जमीन पर किसी मछली के बदन पर कोई पर होता, समुंदर का होना, इससे पेशतर के आसमान पर फजाओं में हवाएं चलती, आमीन, परिंदे होते, हवाओं का होना जरूरी था। इससे पेशतर के जमीन पर मसीह की दुल्हन का आगाज होता, आमीन, मसीह का आगाज होता, एक दुल्हा आता, दुल्हन का पहले वहां पर होना। मेरी बात को समझो। तो खुदा इससे पेशतर के कुछ होने वाला हो उसका इंतजाम इल्म साबक के मुताबिक पहले ही कर देता है। इसी तरह हम में से हर किसी का उसने इंतजाम हमारी पैदाइश से पहले कर रखा था। एवं ही नहीं सी मरियम आ गई कि अच्छा जब मरियम होंगी है वो या तो गरीब जे लोग ने, नासरत दा भैड़ा जा कस्बा कलोनी है, उतों कोई चंगी चीज निकलती है, मरियम दा बेटा नबी। पर खुदा ने कहा यही है, दैट्स इट, वजह क्योंकि मरियम ने कहा था मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। जिंदगी की बातें, द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ। मेरे अजीजों, जिंदगी की बातों के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे वो आपके बस की हो, वहां पर जाना यरूशलेम में या ना हो, आपको जाना वहीं पे पड़ेगा। इसके चलते मैं आखिरी गवाही देता हूं, जब मैं मैसेज में आया था तो मैं बड़ी बड़ी दूर गया हूं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा ये तेरे बस की बात है, मैं कहा बस मेरी दी गल है और किसी दे है भी नहीं। समझे? जिस जमाने में लोग अपने घर से नहीं निकलते, समझ रहे हैं, यंग लोगों का जरा मुसीबत है ना, घरों नहीं निकलते। यंग लोग शादीशुदा घर से नहीं निकलते, कहते की करना बाहर जाके। तब मैंने सब कुछ छोड़ा और मैं गया, और ये मजहब पर बात कर रहा हूं, समझे मेरी बात? तो खुदा ने मुझे भी प्रोमंद किया है, मुझे रहने नहीं दिया पीछे, आपको भी नहीं रहने देगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पर कुछ करके बताना है, कुछ करके दिखाएंगे तो फिर द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ, जिंदगी की बातें आपके पास भी आ जाएंगी। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना नाम का। हालेलुया, तारीफ हो यीशु के नाम।